Hello, Standard 4th. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 17, Nandita in Mumbai, and completed up to this. Right? Now, today we are going to discuss some questions over there. Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? कि नंदिता को अपनी मम्मी को गांव से मुंबई लेकर आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो because her mother was ill and she needs some proper or major treatment, and that's why they have to come to Bombay, and perhaps there are no advanced technology type treatments or hospitals over there in her village, है ना, कि उसके गांव में ऐसी विथ एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कोई हॉस्पिटल्स नहीं होंगी कि जिसमें उसकी मदर का इलाज हो सके, इसलिए उनको बॉम्बे आना पड़ा. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? कि भाई नंदिता जब पहली बार टॉयलेट यूज़ करने गई उसके मामा के घर, तो उसको ऐसा लगा कि उसको वॉमिट हो जाएगी. तो क्यों? तो बिकॉज शी वॉज हैबिटेड टू गो इन ओपन प्लेस एट हर विलेज, कि उसके गांव में तो वो खुले में जाने की आदत थी जहाँ पर गंदगी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बदबू आती है खेतों में और ऐसी जगहों पे जो कि हर तरफ हरियाली और ऐसा होता है. बट ओवर हियर there is a only one toilet between all the street, and the people are not going to keep it clean. It was very dirty and dirty smell was coming out from it. That's why she was feeling vomiting. कि भाई वो जो टॉयलेट में गई वो बहुत गंदा था और उसमें से बदबू भी आ रही थी, इसलिए उसको वोमिट जैसा लग रहा था. लेकिन बेचारी वो भी धीरे धीरे उसकी हैबिट हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन वॉट वे डिड नंदिता फाइंड हर मामास हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? कि अपने गांव के घर से नंदिता को मामा का घर कैसे अलग लगा? तो कि द मामास इन मामास हाउस देयर इज ओनली वन रूम एंड ऑल द थिंग्स दे हैव टू डू इन द सिंगल रूम, सच एज to sit, to eat, to cook, to wash clothes, etc., to sleep. But in her house, there is also one room, but they have different places for cooking and for bathing. And there was big courtyard over there. And this is the difference from both the houses. Now, next question: what differences did Nandita find between getting water from the public tap एंड इन द विलेज? कि भाई यहाँ पर मुंबई में जो पब्लिक टैप है लोगों के बीच का नल, उसमें और उसके गांव में पानी भरने में उसको क्या अलग दिख रहा है? तो इन द पब्लिक इन द मुंबई एट हर मामास हाउस देर इज ओनली वन टैप बिटवीन ऑल द स्ट्रीट, and they have to get up early at 4 o'clock, and if they get late then they would be not able to fetch water for that day, and most of day their fights, their people are fighting for the water, while at her village they have to walk for a half an hour, but there is no fight over there. And sometimes in summer when the lake is going to dried up, they have to walk for 1 hour and get water from the river, but yet people are not fighting for the water because there are lots of water over there. But here there is a shortage of water, and that's why people are fighting with each other for water. This is the difference she find from both the places. Now, was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. कि भाई नंदिता के मामा जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर लाइट है, आप अनुमान करो. तो यस, देयर इज अ लाइट बिकॉज लुक एट द पिक्चर, देयर इज अ टेलीविजन ओवर हियर एंड पीपल, वन मैन इज वॉचिंग टीवी. सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वन कुड नॉट एबल टू सी द TV, and that why we can say that there is electricity in her mama's house. Now, next, learning new things. Every day I go to hospital by bus to see my mother. At first I was too scared.
to get into the such crowded buses. I was not at all used to it. कि भाई रोज मुझे अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन जब पहली बार मैं गई तो मैं डर गई क्योंकि इतनी भीड़ वाली बसें थी वहाँ पर और मुझे उसमें जाना नहीं आता था। आई वॉज अफ्रेड मतलब मैं डर गई, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन द लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि कहाँ से मुझे बस पकड़नी है, कैसे बस में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा होना होता है, कितने रुपए टिकट के देने पड़ते हैं और कहाँ मुझे उतरना है। वेयर वी स्टे देर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, कि भाई जहाँ पर मैं रहती हूँ अभी मामा के घर, वहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और माय मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देर, शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउसेस। कि उस बड़ी बिल्डिंग में मेरी मामी 7 घरों में काम करती है, वहाँ पर वो बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। वन डे आई वेंट देयर विथ हर। When I first saw the building, I thought that it was one big house. But I found that there were many houses, one on the top of another. I was wondering how I would climb too many stairs. अभी क्या हुआ कि एक दिन वो भी अपनी मामी के साथ ये बिल्डिंग में गई, तो पहली बार इस बिल्डिंग को देखकर उसने सोचा कि ये कोई एक ही इंसान का बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर उसे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे घर हैं जो एक के ऊपर दूसरे बने हुए हैं। और फिर उसको और आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and the lift went up quickly. To tell the truth, to tell you the truth, I was very scared in the beginning. कि भाई क्या हुआ कि अभी उसको ऐसे आश्चर्य लग ही रहा था, लेकिन वहाँ पर तो क्या था कि वहाँ पर जाने के लिए लिफ्ट थी, तो जो कि बहुत एक बड़ा लोहे का पिंजरा जैसे लग रही थी, कि जिसमें पंखा भी था, लाइट भी थी और एक बेल भी थी। और बहुत सारे लोग एक साथ अंदर खड़े हो गए और किसी ने बटन दबाया तो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जल्दी से चल दी। लेकिन वो बोल रही है कि मैं सही में बोल रही हूँ, पहली बार मुझे बहुत डर लगा। नाउ लेट अस टॉक। डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल? कि भाई आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो? तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, है ना। हमारे घर में भी कभी ना कभी आस पड़ोस में कोई ना कोई तो हॉस्पिटलाइज हुआ होगा। तो आई विल सेंड यू द PDF। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और सी इन द हॉस्पिटल? तो इसके बारे में डिटेल में लिखनी है, वो कितने दिन रहे न क्या हुआ न वो सब मैं आपको भेज दूंगी। अप्रोक्सीमेटली 2 दिन, 1 दिन। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? आप उसको देखने गए थे? तो कि यस। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल में पेशेंट का ध्यान कौन रख रहा था? तो कि इन हॉस्पिटल द नर्सिस एंड डॉक्टर आर लुकिंग आफ्टर फॉर द पेशेंट, बराबर। फिर उस पेशेंट का कोई रिलेटिव है तो उसका भी लिख सकते हैं कि वो भी वहाँ पर बैठे थे। हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग एंड वेयर? भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, भले 12-15 की नहीं है, लेकिन 8-10 की तो होती है। हाउ मैनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग है? और हाउ मैनी फ्लोर डिड यू क्लाइम? और आप कहाँ तक गए हो? नाउ नेक्स्ट अनदर हाउस। मामी टूक मी फर्स्ट टू बबलू's हाउस। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th स्टोर। कि भाई पहले तो मुझे मामी है वो बबलू नाम का कोई लड़का है उसके घर पर ले गई, तो वो 12वें
फ्लोर पर था, 12वीं मंजिल पर। वॉट अ बिग हाउस, सो मेनी रूम्स, वन टू सीट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। कि भाई उसमें तो वो तो बहुत बड़ा घर था और उसमें बहुत सारे कमरे भी थे, कि एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए, एक रसोई करने के लिए, और वहाँ पर तो टॉयलेट भी घर में ही था। इट टूक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूस हाउस बट शी कुड वर्क ईजीली। कि भाई उसको वहाँ काम करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो बड़ी आसानी से काम करती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। कि भाई किचन में एक नल भी था और उसमें से पानी आता था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। कि जो बबलू है उसने एक बकेट है वो नल के नीचे रखी ताकि वो उसमें पानी भर के नहा सके, और फिर वो टीवी देखने बैठ गया तो बहुत सारा पानी बह रहा था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मैंने जाके नल बंद कर दिया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।